نکلے. مطلب سر آپ کو لگتا ہے اگر آپ اپوزیشن نہیں کرو گے, اگر آپ بات اوپر تک نہیں پہنچاؤ گے, تو یہ جو سرکار ہے موجودہ وہ کچھ نہیں کر سب کر دیے. ایک طرف ہم دیکھیں, کل ہی میں انٹرویو لے رہا تھا, موسٹ سینئر لیڈر اور ایکس ایم ایل اے کرنا راجہ منظور صاحب پیشے سے ایڈوکیٹ بھی ہیں, تو وہ صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل اے کے حکم کے بغیر, ان کے سگنیچر کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا. تو آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس پاور نہیں؟ مہنگائی ہے, یہ بی جے پی کے دور میں ہوئی نا زیادہ. اگر ہم گیس سلنڈر کی بات کریں, وہ کم دام میں ملتا تھا, جیسے بی جے پی کی سرکار آئی اس کی ریٹیں آسمانیں چھونے لگی, ہر چیز پہ جی ایس ٹی, ہر چیز پہ. ملازموں کی تنخواہیں کتنی بڑھ رہی ہیں, لیکن غریب آدمی تو مارا جا رہے ہیں. وہاں پہ یہ بھی چل رہا ہے کہ بی جے پی ووٹ کی بھی چوری کر رہی ہے, صاف طور پر راہل گاندھی جی کہہ رہے ہیں. تو اس حوالے سے کیا بالکل بے بنیاد بیس لیس ایلیگیشنز ہیں, فالس ایلیگیشنز ہیں. آپ دیکھیے اگر چوری کرتے تو کیا کرنا ہے, ہم نہیں جیت پاتے. ہمارے ساتھ مسلسل بات چیت کرنے کے لیے بی جے پی کے سینئر لیڈر محمد ادریس کرنائی ہیں. ادریس صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے. جی شکریہ, السلام علیکم. سب سے پہلے جاننا چاہیں گے, بہت سارے انٹرویو میں نے آپ کے کر لیے, بہت بائٹیں آپ نے دے دی, آپ اپوزیشن کر رہے ہیں, آپ کبھی کبھی کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تو اس کے باوجود کچھ فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ کیونکہ بہت سی بائٹیں آپ کی میں نے کر لی انلمیٹڈ. دیکھیے کہتے ہیں کہ اپوزیشن از دا لائف بریتھ آف پولیٹکس. دیر از نو اپوزیشن, دیر از نو ڈیموکریسی, نو پولیٹکس ایٹ آل. دیکھیے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں جو مجھے کرنا ہے, اور جو آپ نے فرمایا کہ کیا اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے یا نہیں, اس کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جہاں کہیں بھی میں پہنچا, جہاں کہیں بھی میں نے مسائل ابھارے, تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ فوری طور پہ ایکشن ہوا. ایڈمنسٹریشن نے ایکشن کیا, ہماری مرکزی سرکار نے ایکشن کیا, گورنر انتظامیہ نے ایکشن کیا, اور جو آج کی اپاج سرکار ہے اس نے بھی کوشش کی. آپ دیکھیے وہاں ہماری ایک ہاسپٹل بن رہی تھی باغ بیلا میں, تو پچھلے 10 سال سے 12 سال سے وہ اسی طرح پڑی تھی. اس کے اندر گھاس تھا, اس کے اندر گوبر تھا, اس کے اندر یہ مویشی تھے. تو جب وہاں کے لوگوں نے مجھے وہاں بلایا, میں وہاں گیا, تو وہاں میں نے یہ آواز اٹھائی, اور آواز دلی تک پہنچی, آواز گورنر صاحب تک پہنچی, ایڈمنسٹریشن تک پہنچی, اور فوراً اس کے بعد وہاں کام شروع ہو گیا. آپ دیکھیے جا کے وہاں کام ہوا. تو اسی طرح ہمارے اور بہت سارے کام ہوئے, جہاں کہیں بھی میں نے یہ مسئلے ابھارے تو وہاں انشاءاللہ ہوا. یہ کل 4-6 دن پہلے میں کنڈی میں گیا تھا, وہاں پر برج کی شدت سے ضرورت ہے, وہاں لوگوں کو آر پار جانے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہاں بھی ہم نے آواز اوپر تک پہنچائی ہے, اور اس پہ بھی فوری طور پہ ایکشن ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ڈی سی صاحب اس دن آئے یہاں پہ, جس دن ہم نے یہاں ریلی کی, ترنگا ریلی, تو اسی وقت پھر میری آپ نے بائٹ لی, اور پار سے کوئی لوگ آئے تھے میڈیا والے, انہوں نے بائٹ لی. تو میں نے فوری طور پہ ڈی سی صاحب کو دعوت کی. میں نے کہا کہ ڈی سی صاحب کو چاہیے کہ ایک بار پھر فوری طور پہ یہاں آئیں اور یہاں کے معاملات اور مسائل دیکھیں, اور ہم ان کے ساتھ یہ شیئر کریں گے جو بھی ہمارے مسائل ہیں, تو ان کا انشاءاللہ وہ حل ڈھونڈیں گے. تو پرسوں آتے آتے جب میں سری نگر سے آیا, تو محترم ڈی سی صاحب سے میں ملاقات ہوا, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر کرنا جو ہے یہ 3 سیکٹروں میں بٹی ہوئی ہے. یہ 3 زون ہیں, ٹنگڈار نیچیا یہ جو زون ہے, اور پھر ٹیٹوال والا ہے, اور پھر ٹاڑ سیکٹر ہے. یہ 3 سیکٹرز ہیں. تو آپ نے دورہ فرمایا ٹنگڈار اور ٹیٹوال کا, لیکن ابھی آپ کو دورہ فرمانا ہے ٹاڑ سیکٹر کا. وہاں کی بھی گون مشکلات ہیں, مسائل ہیں, پرابلمس ہیں. تو جیسے کہ میں نے ان کے ساتھ وہاں پہ آفس میں ڈسکس کیا کہ وہاں پہ وہ پلے گراؤنڈ کا مسئلہ ہے, تو اسی طرح وہاں پر نیبت کا مسئلہ ہے, تحصیل کا مسئلہ ہے, وہاں پہ ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے. ہمارا ٹاڑ جو مرکز ہے اس سیکٹر کا وہ گپ اندھیرے میں ہے پچھلے 1 سال سے, اور یہ ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں چنے ہوئے ان کو ٹچ سے مس نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ہماری ہی بدبختی ہے. تو پھر آج دیکھیے اس کا اثر ہوا نہیں ہوا. آج محترم ڈی سی صاحب نے مطلب کل کے وہ آئے ہوئے تھے, وہ بالکل ٹاڑ میں پہنچے, انہوں نے وہاں کے لوگوں کے مسائل سنے, اور ان کو ایشور کر کے آئے کہ یہ جو آپ کے مسائل ہیں, مسئلے ہیں, یہ جنون ہیں, اور ان کا حل جلدی ہی نکلے. مطلب سر آپ کو لگتا ہے اگر آپ اپوزیشن نہیں کرو گے, اگر آپ بات اوپر تک نہیں پہنچاؤ گے, تو یہ جو سرکار ہے موجودہ وہ کچھ نہیں کر پائے گی؟ دیکھیے سرکار تو اپاہج سرکار ہے, یہ تو لنگڑاتی ہوئی سرکار ہے. یہ اگر میں اپوزیشن نہیں کروں گا تو تب بھی یہ کیا کر پائیں گے, اگر کروں گا تو تب بھی یہ کیا کر پائیں گے. یہ تو وینٹیلیٹر پہ ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کا چیف منسٹر
इनका चीफ मिनिस्टर अपने आप को तशबीह दे रहा है घोड़े के साथ कि हमारी मिसाल उस घोड़े की है जिसकी आगे वाली दोनों टांगे बांध दें। फिर कहते हैं उसी इंटरव्यू में कि हमारे दोनों हाथ पीछे इन्होंने बांध दिए हैं। फिर ये कहते हैं कि हमसे एक पटवारी की ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। फिर ये इनके डिप्टी सीएम ने कल परसों कहा कि आज तक हम करते रहे ये वो, लेकिन बात सच्ची ये है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये इन्होंने तो ऑलरेडी सरेंडर किया है ना सर। सब कर दिए। एक तरफ हम देखें, कल ही मैं इंटरव्यू ले रहा था, मोस्ट सीनियर लीडर और एक्स एमएलए करना राजा मंजूर साहब पेशे से एडवोकेट भी हैं, तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि एमएलए के हुक्म के बगैर, उनके सिग्नेचर के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप क्यों ऐसा कह रहे हो कि उनके पास पावर नहीं है? राजा साहब मंजे हुए लीडर हैं, वो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, एक खानदानी आदमी हैं, उनकी अच्छी खासी सीरत बसीरत है, उनकी बड़ी सोच है। अगर देखिए तो राजा साहब ने ये थप्पड़ मारा है, देखिए राजा साहब ने एक मजाक उड़ाई है इनके साथ। अगर ये ना समझ पाए तो इनके अपने फेम का कसूर है। देखिए राजा साहब ने इनको तनकीद का निशाना बनाया है। चीफ मिनिस्टर वहां से कह रहा है कि हमारी मिसाल उस घोड़े की है जिसकी टांगे बांध दो आगे वाली। हमारी मिसाल यह है कि हमारे हाथ पीछे, जैसे मुलजुम के हाथ पीछे बांधे जाते हैं, ऐसे बांध दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर कहता है कि भाई मैं एसपीओ की पटवारी की ट्रांसफर नहीं कर पाऊंगा। तो राजा साहब ने, वो बड़े लीडर हैं, मंजे हुए लीडर हैं, उनकी बड़ी लंबी सोच है, उन्होंने एक मजाक उड़ाई है। अब आप खुद सोचिए कि चीफ मिनिस्टर के ये इख्तियारात हैं, वो खुद इतराफ कर रहे हैं, तो फिर एमएलए साहब के क्या इख्तियारात हो सकते हैं? ये राजा साहब ने मजाक किया। राजा साहब बड़े लीडर हैं। अब ये ना समझ पाए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन अगर हम बात करें, उन्होंने ये भी कहा कि एमएलए करना जो जुवैद मरचाल साहब हैं, वो हर एक जो इशू है उसको हाईलाइट करते हैं, पर मरकजी सरकार सुनती नहीं। ऐसा क्यों? मतलब अगर आप बीजेपी के हो तो आप भी कोशिश कर सकते हो यहाँ डॉक्टर लाने की, उसके अलावा और फैसिलिटीज देने की। जब आप बार बार ये बोल रहे हो कि मरकज हुकूमत के पास पावर है, मरकज हुकूमत के पास पावर है, अगर इन लोगों के पास पावर नहीं है तो आप करना के लिए कुछ बड़े काम करो ना। हाँ कर रहे हैं हम ना। आप देखिए ना, डॉक्टर लाए तो किसने लाए? जब अपोजिशन ने आवाज उठाई, मरकज तक पहुंचाई, यहाँ पे गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाई, तो वहां से डॉक्टर उन्होंने भेजे। लेकिन बदबख्ती ये है कि अभी भी इसमें बड़ा फर्क है, तो इसके लिए शायद हमें रोडों पे आना पड़ेगा। सर किसने बात की है डॉक्टरों की बात तो यहाँ की आवाम ने की, यहाँ की आवाम के जो अपोजिशन के लोग हैं उन्होंने की। अब जब कभी काम होता है तो ये भी आगे बढ़ाते हैं कि ये काम तो हमने किया। देखिए बीजेपी का क्या रोल है यहाँ से? देखिए करना से बीजेपी का क्या रोल है डॉक्टरों का? हमेशा पॉजिटिव रोल रहा है। हम हमेशा इनके मतलब ये इल्तजा करते रहे मरकजी सरकार से, ये जो गवर्नर इंतजामिया उनसे, जो ये कठपुतली सरकार है इनको भी कहते रहे, लेकिन इनसे कुछ हो ही नहीं पा। जब खुद एक चीज खुद इतराफ कर रहे हैं तो इनसे कह के हम क्या करेंगे? तो बहरहाल ये है कि लेकिन हेल्थ मिनिस्टर भी तो सर इनकी है, अगर यहाँ डॉक्टर आते हैं तो जब तक वो है, लेकिन यह है कि चलती नहीं है, वो खुद बोलते हैं। ये एक्चुअली लेम एक्सक्यूज है ये जो कहते हैं हमारी चलती नहीं है। देखिए इनके पास इख्तियारात हैं, सब कुछ है, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं, ये अपने इख्तियारातों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा है, तभी ये ऐसा वैसा बोल रहे। बाकी आप देखिए ना, हमने जो भी इश्यू उठाया उसका हल निकला। जो भी इश्यू हमने उठाया सरकार के सामने, मरकजी सरकार की या ये जो दूसरी सरकार है, ये हमारी जो गवर्नर इंतजामिया है, इनके सामने जो भी हमने इश्यू रखा उसका हल निकला। बाकी राजा साहब ने इनके साथ एक मजाक उड़ाई है, वो ये समझ रहे हैं तो अच्छी बात है कि इनका चीफ मिनिस्टर बेचारा वो हैंडीकैप्ड है, तो ये एमएलए साहब क्या कर। अच्छा सर, आपने जो भी इश्यू उठाए, हम मानते हैं कोई इशू पूरे हुए, लेकिन अब वादी करना है कि आवाम सुन रही है। बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी बिजली की फीस 550 रुपये है, 520 है। क्या आप मरकजी सरकार में ये बात करोगे कि उनकी जो फी है वो कम हो जाए? देखो हम क्यों नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं और हम करेंगे। लेकिन धोखा किसने दिया? बात ये है, धोखा दिया एनसी ने। आप देखिए ना, इन्होंने बोला 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 5 से 10 केजी चावल फ्री देंगे, 12 गैस सिलेंडर देंगे, पहले ही साल 6 महीने के अंदर 1 लाख नौकरियां देंगे। बाकी इन्होंने बहुत सारे झूठे वादे किए, एक भी पूरा नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि इंशाल्लाह ये जो बिजली की जो फीस है ये हम कम करवाएंगे और जो गरीब लोग हैं उन्हें माफ करवाएंगे, ये हमारा वादा। लेकिन ये जो महंगाई है ये बीजेपी के दौर में हुई ना ज्यादा। अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें,
वो कम दाम में मिलता था, जैसे बीजेपी की सरकार आई उसकी रेटें आसमानी छूने लगी, हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे ये मसला। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो कर रहे हैं ये बेसलेस एलिगेशंस ये एनसी वाले लगा रहे हैं कि ये रेटें हाई हो गई। आप उधर से भी देखिए ना, मुलाजमों की तनख्वाहें कितनी बढ़ रही है, लेकिन गरीब आदमी तो मारा जा तो रहा है। गरीबी के लिए तो हम सोच रहे हैं ना, जो गरीब है उसके लिए ये बिजली की जो फी है ये कम करवाई जाएगी, जो ज्यादा गरीब हैं एवाई वाले उनको माफ करवाई जाएगी। इसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। अच्छा, बाहर की बात करें, वहां पे ये भी चल रहा है कि बीजेपी वोट की भी चोरी कर रही है, साफ तौर पर राहुल गांधी जी कह रहे हैं, तो इस हवाले से क्या ये कहें? बिल्कुल बेबुनियाद ये बेसलेस एलिगेशंस हैं, फॉल्स एलिगेशंस हैं। आप देखिए, अगर चोरी करते तो क्या करनाल में हम नहीं जीत पाते? अगर चोरी करते तो क्या कश्मीर से हम एक सीट नहीं निकाल पाते? चोरी की बात ही नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फेयर, स्मूथ इलेक्शन होते हैं, कहीं चोरी का नाम नहीं है। अब ये है कि ये जब हार जाते हैं, आवाम का दिल नहीं जीत पाते हैं, तो फिर ये बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं। चोरी की बात ही नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज कोई चोरी नहीं कर पाता है। और बीजेपी जो है ये ऐसी सरकार है ना कि ये ट्रांसपेरेंट सरकार है। अच्छा, इलेक्शन की बात हुई, वोटों की बात हुई, तो मेरे ज़हन में एक चीज़ आ गई। बहुत से लोगों से मैंने सुना कि अगर हम बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं अदरीस करनाई, उनको हम वोट भी देते, लेकिन वो रहते बहुत दूर हैं। अगर टंगडार मरकज़ की बात करें, इस इलाके से बहुत दूर रहते हैं। इसके इर्द गिर्द जो भी इलाके आते हैं, गुम्बल की बात करें, नपोरा, बखाइयाँ, लूंठा, कंडी, जो भी इलाके आते हैं, तो इन लोगों के मुंह की बातें हैं, ये मैंने सुनी खुद। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या आने वाले वक्त में कोई तैयारी है? देखिए, लोगों ने ये जो कहा, मेरी आवाम ने ये जो कहा, तो हक बजा कहा, 101% सही कहा कि एक कॉर्नर में रहकर अवाम की खिदमत नहीं हो सकती है। ये हकीकत है। लोगों ने ये बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आप देखिए, पीठवाल वाला, सीमारी वाला, बाग बेला वाला, वहां से पहले गाड़ी बुक करके टंगडार आएगा, गाड़ी वो जो इस रूट की गाड़ियां होती है वो यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से गाड़ी बुक करेगा वहां पहुंचेगा, या वहीं से गाड़ियां बुक करके वहां पहुंचेगा, तो उसके लिए ये तो परेशानी है ना। और लोग जाते हैं मेरे पास, जगह जगह से गाड़ियां लेके जाते हैं, अपने मसाइल लेकर जाते हैं, तो ये हकीकत है। लेकिन मैं आपको ये अर्ज करता चलूं कि मैंने इस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए, जो आवाम की ये प्रॉब्लम थी, ये मुश्किल थी और हक बजा थी, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पे इंतज़ाम किया है ये ज़मीन लेने का, और मैंने ले ली है, बेनामा भी हो चुका है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और पब्लिक से भी ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि उनकी बका के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनकी मुश्किल कशाई के लिए, उनके कामों के लिए, उनकी मुश्किलात जो हैं उनके हल के लिए मैंने अपना आशियाना यहाँ ठीक जहाज़ ग्राउंड के पीछे बनाने का जनाब अली ये इरादा कर लिया है और इंतज़ाम भी कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ ये जो ज़मीन मैंने लिया है, मेरे लेने का मकसद यही है कि मैं ताकि करनाल की आवाम की सही मानों में खिदमत कर सकूं, ताकि उनको धोखा ना हो। तो वो मैंने जो मेरा जीपी था, कम्यूटेशन थी, जो मेरा वो बाकी ग्रेजुएटी थी, या बाकी जो भी मेरा सुरमाया था, मैंने लोगों की खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मैंने यहाँ ही इन्वेस्ट कर दिया। तो अब इंशाल्लाह छोटा सा आशियाना बनाऊंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, यहाँ हमारा हेडक्वार्टर है। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बोलूंगा टंगडार का नाम ही, मतलब सर मतलब फ्यूचर की तैयारी कर दी है, तीर मार दी। मैं तो वही आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं वो हूँ जो टंगडार को अपना दिल मानता हूँ, जो टंगडार को अपना दिमाग मानता हूँ, जो टंगडार को सबसे बेहतर मानता हूँ। टंगडार हमारा मरकज है, यहाँ हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बीडीओ ऑफिस, यहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर, यहाँ पे हमारा पुलिस स्टेशन, हमारा कोर्ट, हमारा ब्रिगेड, हमारी हॉस्पिटल, तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। इसीलिए मैंने अपने आप को अगरचे कितनी ही परेशानी में डाला, मैंने अपनी ग्रेजुएटी, अपने वो जो भी सुरमाया था, जो भी पूंजी थी, मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दी, सिर्फ लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी मुश्किल कुशाई के लिए, उनकी हाजत रवाई के लिए, उनकी बिगड़ी बनाने के लिए, उनकी यानी कि उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, ताकि मैं चप्पलों में भी जाके लोगों का काम कर सकूं। टंगडार मेरा जिगर है, ये कहना है अदरीस करनाई जी का कि टंगडार मेरा दिल है, टंगडार मेरा जिगर है, टंगडार मरकज है, टंगडार में हर चीज़ है।
تو آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں انہوں نے ٹنگڈار کے اندر زمین لے لی اور وہاں پہ اپنا نشانہ بنا رہے ہیں. آنے والے وقت میں اگر یہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں اور جیت جاتے ہیں تو یہ لوگوں کو مین ٹنگڈار کے اندر ملیں گے. تو سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو اس چیز کی کہ آپ نے یہاں پہ زمین. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک اور میری عوام کو بھی مبارک. اور انشاءاللہ میں یہاں رہ کے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہاں رہ کے، مرکز میں رہ کے، ٹنگڈار میں رہ کے، جو بھی پریفری ایریا ہے اس کو لے کے میں لوگوں کی خدمت کروں گا، سر دھڑ کی بازی لگاؤں گا، پورا زور لگا کے خدمت کروں گا، کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا وعدہ رہا. بہت بہت شکریہ.